ماشاءاللہ یہ بہت بہترین ترانہ بچے نے پیش کیا ہے، اور یہ ترانہ ہی نہیں بلکہ ایک دعا تھی۔ آپ نے اگر غور کیا ہوگا تو بہت سی جگہ آپ کو آمین کہنے کی ضرورت تھی، اور غور نہیں کیا ہوگا تو آمین بھی نہیں کہہ رہے گے۔ ٹھیک ہے، ابھی آئندہ سے الفاظ پہ غور کرنا، ہر نعت نظم ترانہ جو بھی پیش کیا جائے دھیان سے سنیں گے تو الفاظ سمجھ میں آئیں گے، اور اس پر آپ کو جو ہے کیا کرنا چاہیے، کیا ایکشن ہونا چاہیے وہ ہوگا۔ اس لیے پوری توجہ کے ساتھ میں آپ ابھی آگے کے پروگرام کو سنیں۔ اب میں ادب احترام کے ساتھ امیر کرما ناسک کے سیکریٹری حضرت مولانا سلیم صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ ڈائس پر تشریف لائیں، بچوں بڑوں کے اعتبار سے کچھ نصیحتی کلمات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صدق اللہ العظیم۔ قابل احترام بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیارے طلباء و طالبات اور خواتین اسلام، آج ہم یہاں پر سب جمع ہیں ایک عنوان کے اوپر اور ایک نسبت کے اوپر، اور یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ اتنی بڑی تعداد کے اندر خواتین بھی ہیں، اور الحمدللہ بچوں نے بھی اچھا پروگرام پیش کیا۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے جشن یوم آزادی، یعنی آزادی کا دن، اس کا جشن، ہم جشن منا رہے ہیں، ملک کی آزادی کا جشن منا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تھا، جیسا کہ ان بچوں نے بتایا تھا، چھوٹے بچوں نے، کہ چند سال پہلے ہم غلام تھے، غلامی کے بعد ہم آزاد ہوئے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اور کن لوگوں نے غلام بنایا تھا؟ ان بچوں نے ہمیں بتایا، انگریزوں نے ہمیں غلام بنایا تھا۔ انگریز اس ملک کو بھارت میں تجارت کی غرض سے آئے، تجارت کے لیے گئے، لیکن دھیرے دھیرے انہوں نے قبضہ کرنا شروع کر دیا، اور اس پیارے ملک کے اوپر وہ قابض ہو گئے اور اس کے مالک بن گئے، اور جو یہاں کے رہنے والے تھے، یہاں پر انہوں نے ظلم اور زیادتی ان کے اوپر کرنے لگے، ہر اعتبار سے ظلم و زیادتی۔ اور مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑی پریشانی یہ ہے کہ وہ اپنے دین کے اوپر چلنا، تو ایمان والوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے جو سب سے بڑی مصیبت جو تھی وہ دین کے اوپر چلنا تھی۔ انہوں نے بہت سارے ایسے رکاوٹ لگا دی تھی کہ مسلمان دین کے اوپر نہیں چل سکتا، تو اس طرح کے انہوں نے ظلم اور زیادتی شروع کی۔ تو سب سے پہلے جو ظلم کے خلاف اور آزادی کے لیے سب سے پہلے جو آواز لگائی گئی وہ ہمارے اکابرین میں، ہمارے اسلاف میں شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے۔ یہ بچیاں اگر غور سے سنیں گی تو ان کو سمجھ میں آئے گا، بات کریں گے تو انہیں سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر ہم وہی نام لیتے رہیں گے ابھی جو نام لیا گیا ہے۔ اس لیے ابھی بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا ملک جو بھارت تھا، اس کو کن لوگوں نے آزاد کرایا؟ وہ کون سے مجاہدین تھے جنہوں نے ہمارے ملک میں آزادی کی جنگ لڑی اور ہمارے پیارے ملک کو آزاد کرایا؟ تو یہ بچے اگر دھیان سے سنیں گے تو ان کو سمجھ جائے گا، ان کے نام سمجھ جائے گا۔ ابھی میں نے ایک نام لیا، شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔ اور ہمیں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ انگریزوں سے پہلے کون حکومت کیا کرتا تھا؟ 1526 کے اندر جو ہمارے مغل بادشاہ تھے، انہوں نے اس ملک کو یعنی انڈیا، بھارت کے اوپر انہوں نے حکومت کی، وہاں سے ان کی شروعات ہوئی۔ تو اس وقت تو صرف ہمارا بھارت ہی، آج جو پڑوس کا ملک ہے اور بنگلہ دیش ہے، افغانستان، یہ سب مل کر پورا ایک بھارت تھا۔ تو اس کے اوپر انہوں نے 1526 سے شروعات کی چند حصوں میں بھارت کے، اور پھر 1707 تک کے انہوں نے مغل بادشاہوں نے۔ اب 1526 سے لے کے 1707 تک یہ کتنے دن ہو گئے، کتنے سال ہو گئے؟
इनसे हुकूमत इन्होंने छीना, अंग्रेजों ने छीना। अंग्रेजों ने किससे हुकूमत छीना? अरे मुसलमानों से। मुसलमान बादशाह थे, मुसलमान हुक्मरान थे। तो फिर मुसलमानों ने ही अंग्रेजों से लड़ाई की। तो अंग्रेजों से लड़ाई कोई 1 साल और 2 साल नहीं हुई, बल्कि 2 सदियों तक तकरीबन मुसलमान और खासतौर पर हमारे उलमाए किराम उन्होंने आजादी की जंग लड़ी और अपनी कुर्बानियां दी। अगर हमारे उलमाए किराम आजादी की जंग न लड़ते तो हमारा ये मुल्क कभी आजाद नहीं होता। तो आजादी की जंग के अंदर जो पेशवा और हैसियत रखते हैं, यानी जिन्होंने शुरुआत की आजादी की जंग के लिए, वो सबसे पहले कौन रहे हमारे मुसलमानों में? शाह अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह, फिर शाह शहीद रहमतुल्लाह, अहमद शहीद रहमतुल्लाह, शाह इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह कि उन्हीं की फौज के अंदर हैदर अली जो टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के वालिद थे, टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह, यानी सदियों तक के मुसलमानों ने अंग्रेजों से लड़ाई की और उनको जवाब देते रहे और शहीद भी होते रहे। मैं मुख्तसर के अंदर ये बात बताना चाहता हूँ, जो मशहूर नाम हमें मालूम होना चाहिए, जिन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और हमारे मुल्क भारत को आजाद कराया। 1857 की एक जंग मशहूर है। 1800 अभी कौन सा सन चल रहा है? 2023 चल रहा है। और हमारा मुल्क कब आजाद हुआ? 1947 के अंदर। तो एक 1947 1947 जब आजाद हुआ, अरे बड़ी जंग जो हुई अंग्रेजों से, जो मुसलमानों ने लड़ी, वो 1857 में यानी 1847 के अंदर, 48 के अंदर एक बड़ी जंग हुई कि जिसके अंदर बड़े बड़े उलमाए किराम थे, बड़े बड़े उलमाए किराम थे। जिसके अंदर मशहूर नाम आता है हमारे अकाबरीन में से मौलाना कासिम नानवी रहमतुल्लाह अलैह का, हज़रत मौलाना इमदादुल्लाह मुहाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह का, हज़रत मौलाना रशीद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह का, हज़रत हाफिज जामिल रहमतुल्लाह अलैह का, और बहुत सारे उलमाए किराम थे जिन्होंने आजादी की जंग लड़ी थी। 1857 के अंदर जब मुसलमानों ने हमारे अकाबरीन ने जंग लड़ी, उस वक्त तो कुछ अपनों की गद्दारी की वजह से और इसी तरह जंग का सामान कम होने की वजह से हमको हार का सामना करना पड़ा। और उस वक्त तो तकरीबन 2 लाख के करीब मुसलमान इस जंग के अंदर शहीद हुए। कितने शहीद हुए? 2 लाख। 2 लाख समझ जाते कितना है? उसके अंदर 50,000 के करीब उलमाए किराम थे, जिसमें से 500 उलमाए किराम को फांसी पे लटकाया गया। ये मैं कोई कहानी नहीं बता रहा हूँ, कि बस तो मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ, ये तारीख की बात है। ये तारीख में ये चीजें लिखी हुई है और तारीख उन्होंने लिखी हुई है जिन्होंने देखा, और मुसलमानों ने, बल्कि बड़े बड़े जो अंग्रेज मुआरिख गुजरे हैं उन्होंने ये बात लिखी। तो इतनी कसीर तादाद में, इतनी ज्यादा तादाद में आजादी की जंग लड़ने के लिए, इस मुल्क को आजाद कराने के लिए मुसलमानों ने अपनी जान का कुर्बाना नजराना दिया। और जब ये जंग हो गई तो उसके बाद बरतानिया का जो वजीर था, बड़ा आदमी था, उसने अपने मुशीरों को, जिससे मशवरा लेते हैं, उनको जमा किया और कहा कि हम किस तरह इस मुल्क भारत के अंदर अपनी हुकूमत को कायम कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। तो उन्होंने बड़े बड़े लोगों से मशवरा लिया। तो उस वक्त तो भारत के अंदर जो सबसे बड़ा सियासतदान था, तो उसने एक जुमला कहा था जो हमारे लिए एक बहुत बड़ी फिक्र की बात है, एक सोचने की बात है। उसने ये कहा था कि सबसे ज्यादा बेदार यानी जागने वाले ये मुसलमान हैं और सबसे ज्यादा लड़ने वाले मुसलमान हैं, और उनके अंदर जिहाद का जज्बा यानी लड़ने का जज्बा हमसे, इसलिए इनके अंदर जो जज्बा है लड़ने का, इसको खत्म किया जाए। और ये कहा, ये जज्बा खत्म करने से पहले उनके अंदर जो कुरान है और जो उलमाए किराम है,
आलिम लोग हैं उनको खत्म किया जाए। तो उन्होंने 1861 के अंदर 3 लाख कुरान को जलाया, खत्म कर दिया। कितने कुरान को जलाया? 3 लाख। और 14,000 उलमाए किराम को फांसी में लटकाया। 14,000 उलमाए किराम को 1864 से लेके 1867 यानी 3 साल के अंदर उन्होंने 14,000 उलमाए किराम को फांसी के ऊपर लटकाया। ये तो मैं 1857 की बात कह रहा हूं कि उस वक्त इतनी बड़ी कुर्बानी हमारे उलमाए किराम ने और मुसलमानों ने दी, और उन्होंने मुसलमानों के ऊपर, उलमाए किराम के ऊपर और कुरान की इतनी बेहरमती की, फिर भी हमारे अकाबरीन का ये सिलसिला उनसे लड़ने का रुका नहीं। और आखिर में 1920 के बाद उस वक्त जो हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम थे, हज़रत मुफ्ती महमूदुल हसन, ये एक बड़ा नाम है, जिन्होंने एक मशहूर तहरीक चलाई थी अंग्रेजों को इस मुल्क से भगाने के लिए। उस तहरीक का नाम है तहरीक रेशमी रुमाल। तहरीक रेशमी रुमाल। इसी तरह हिंदुस्तान छोड़ो ये तहरीक थी, तहरीक की खिलाफत थी, ऐसी बहुत सारी उन्होंने तहरीक चलाई। और हज़रत मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन जो शेखुल हिंद थे, इन्होंने आलमगीर यानी पूरे आलम के अंदर ये तहरीक चलाई। खासतौर पर उनके जो एक शागिर्द थे हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, ये एक बड़ा नाम है। और इसी तरह मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इनके शागिर्द, इनके स्टूडेंट थे। हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी को अफगानिस्तान भेजा हुआ था कि किस तरह वहाँ की जो जोशीनी कौम है, जोशीनी लोग हैं, उनको अंग्रेजों के खिलाफ मुतहिद कर सके। तो इन्होंने जब वो निकल रहे थे उस वक्त उनकी दाढ़ी निकल रही थी, लेकिन जब वापस आ रहे थे तो उस वक्त उनके सफेद बाल शुरू हो चुकी थी। तो इतनी बड़ी ये कुर्बानियाँ और इतनी बड़ी जो तहरीक चली हमारे मुल्क को आज़ाद करने के लिए, ये इसका सिलसिला जारी था। और मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। अगर हम देखेंगे तो ये मुल्क किस तरह आज़ाद हुआ, हम उसको बयान नहीं कर सकते कि कितनी कुर्बानियाँ हुई कम वक्त के अंदर। लेकिन समझने की बात यह है कि जो हमारे मशहूर उलमाए किराम आखिर में 1920 के बाद फिर जमीयत उलमा हिंद बनी, 1919 के अंदर फिर एक प्लेटफॉर्म बना कि किस तरह अंग्रेजों से लड़ा जाए। उस वक्त तो कांग्रेस बनी। फिर उस वक्त तो जो हमारे बिरादरान के वतन थे महात्मा गांधी, ये 1920 के बाद आए। और 1920 से पहले हमारे बड़े बड़े उलमाए किराम, बड़े बड़े बादशाह जो टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफर और दीगर हुक्मरान थे, उन्होंने अंग्रेजों से लड़ा। और फिर हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि उनके अंदर इतनी जुर्रत थी, इतनी बहादुरी थी और अंग्रेजों से बहुत नफरत थी। हमारे जो उलमा थे बहुत ज्यादा नफरत किया करते थे अंग्रेजों से। इससे नफरत करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन नफरत इसलिए किया करते थे कि वो इंसानों के ऊपर, भारत के वासियों के ऊपर वो जुल्म और ज्यादती किया करते थे, उनको गुलाम बनाया था, इसलिए उनको यहाँ से भगाना जरूरी था। तो उनसे नफरत करते थे और उनके खिलाफ करते थे। तो एक मरतबा उनके लिए एक वारंट भी जारी हुआ हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह के लिए कि किस तरह उनको उनको गोली से उड़ा दिया जाए। तो उस वक्त तो बड़े बड़े जलसे भी हुआ करते थे अलग अलग जगह पर, जहाँ पर आकर अंग्रेजों के खिलाफ कहा जाता था, उनसे लड़ने को कहा जाता था। तो एक मरतबा कराची के अंदर बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जलसा था। उस वक्त तो भी हज़रत मौलाना हुसैन मदनी रहमतुल्लाह अलैह उनका वारंट जारी हो चुका था अंग्रेजों की तरफ से कि उनको उड़ा दिया जाए गोली से। लेकिन फिर जो कॉन्फ्रेंस में आए और जलसे में आए, लोग ये समझते थे कि जलसे में नहीं आएंगे, लेकिन वो आए और कफन लेकर आए। कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। हमारे अकाबरीन कैसे थे, कितनी जुर्रत थी, कितनी बहादुरी थी। वो कभी अंग्रेजों से नहीं लड़े, नहीं कभी लड़े। अगर वो अंग्रेजों से डर जाते हैं तो ये मुल्क आजाद नहीं होता। तो उस वक्त उन्होंने शेर भी कहा, एक लंबा शेर है, वक्त तो कम है। तो ये इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। ये जेलों में भी गए, इनको असीराने माल्टा की जेलों में भी इनको रखा गया। हज़रत मौलाना हुसैन मदनी को, मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी रहमतुल्लाह अलैह को, मौलाना मुफ्ती महमूदुल हसन रहमतुल्लाह अलैह को, ये हमारे अकाबरीन थे, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। तब जाकर हम इस मुल्क के अंदर आज़ाद हैं। तारीखों से पहले ये प्रोग्राम
प्रोग्राम इसलिए मुनक्किद किया गया, रखा गया ताकि हमें पता चले कि हमारे मुल्क को आज़ाद कराने में कौन मुजाहिदीन थे, किन्होंने आज़ाद कराया। तो हमें ये पता चलना चाहिए। सबसे ज़्यादा कुर्बानी हमारे उलमाए किराम ने और मुसलमानों ने इस मुल्क को आज़ाद कराने में दी। उनका नाम जिंदा रहे, इसलिए हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं कि उनकी लाजवाब कुर्बानियाँ हैं, बेमिसाल कुर्बानियाँ हैं, ताकि हमारे जो बच्चे नई नस्ल है उनको पता चले। वरना आज हम स्कूलों में जाते हैं तो स्कूलों के अंदर यही बताया जाता है, चुनिंदा नाम बताए जाते हैं। वो ऐसा लगता है कि दो भाई के लड़ाई झगड़ा था कि आपस के अंदर उन्होंने सुलह सफाई कर ली और हमारा मुल्क आज़ाद हो गया, हम ये समझते हैं। ऐसी बात नहीं है, बल्कि इस मुल्क को आज़ाद करने के लिए हमारे जो अकाबरीन थे, उलमाए किराम थे, उन्होंने ये कुर्बानियाँ दी, ये मुल्क आज़ाद हुआ। इसलिए हमें उनकी कुर्बानियों को याद करना है, उनके नामों को जिंदा रखना है और उनके लिए दुआ भी करना है कि उन्होंने हमारे लिए जब कुर्बानियाँ दी। और अभी हमारे एडवोकेट साहब थे, वकील साहब थे, उन्होंने बहुत सारे सवाल किए थे। अभी हमारे जो बच्चों ने, जो चंद छोटे छोटे बच्चे 5 से 6 खड़े थे, उन्होंने आपस के अंदर जो डायलॉग किया और जो उन्होंने ड्रामा पेश किया, मुकालमा पेश किया, उन्होंने इस जज्बे से पेश किया कि हमारे जो बच्चे हैं कि जो बुरे लोग हैं, जो हिंदुस्तान को खत्म करना चाहते हैं, ये बच्चे ही हमारे लिए काफी है। तो ये जज्बा हमारे अंदर होना चाहिए, जो हमारे छोटे बच्चों के अंदर जज्बा था कि हम अपने मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि दोबारा ऐसे लोग हमारे ऊपर हुकूमत करने लगे और हम दोबारा गुलाम बन जाए और दोबारा हमारा दीन के ऊपर चलना मुश्किल हो जाए। उसके लिए हमारे अंदर ये जज्बा होना चाहिए कि हम मुल्क के लिए, हमारे आइन के लिए, दस्तूर के लिए, संविधान के लिए हम मेहनत करें। सबसे पहले तो अगर हम तालीम के अंदर आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमारा फायदा होगा, हमारे वालिदैन का नाम रोशन होगा, मुसलमानों को तरक्की होगी और इसी तरह हमारे मुल्क में भी तरक्की होगी। हमारे वकील साहब ने कहा था कि हमारे मुल्क में तरक्की कैसे हो, तो तरक्की यही है कि हम तालीम के अंदर आगे बढ़ेंगे। जैसे अब अब्दुल कलाम थे, वो मिसाइल मैन बने, तो कितनी बड़ी तरक्की है हमारे मुल्क भारत में। तो इसी तरह हम डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे, तो इस मुल्क में तरक्की होगी, हम तालीम के अंदर आगे बढ़ेंगे। तो आज का ये प्रोग्राम बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा, बच्चों ने भी अच्छा अपना प्रोग्राम पेश किया और काफ़ी मैदान के अंदर बच्चे भी है, ख़वातीन भी है। मैं दिल से यहाँ के जिम्मेदारों का भी शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना बेहतरीन प्रोग्राम पेश किया और माशाअल्लाह आइंदा भी यहाँ के जो जिम्मेदार पुराज़्म है तो इस तरह का प्रोग्राम करते रहेंगे और जो कमियाँ हैं इंशाअल्लाह उसको भी करते रहेंगे। हमारे यहाँ जो बच्चे पढ़ते हैं पाबंदी से, वो आप सभी लोग जानते हैं कि हाजिरी की पाबंदी करने वाले बच्चों को इनाम दिया जाता है ना। साल भर 10 फ्री मकसद मिलती है, उससे ज़्यादा हो जाए तो इनाम नहीं मिलता और एक भी गैर हाजिरी हो जाए तो इनाम नहीं मिलता है। इसलिए कभी भी छुट्टी की ज़रूरत हो तो आप उस्ताद से या ऑफिस से छुट्टी लेकर ही रुखसत करें और उसका रिकॉर्ड अपने किताब में लिखें और महीने के आखिर में रिकॉर्ड हाजिरी का जो लिखा जाता है उसके ऊपर दस्तखत करें। पिछले बार जो रिजल्ट डे था, रिजल्ट डे में इनामात तकसीम किए गए थे, एक बच्चे की ट्रॉफी बन नहीं सकी थी, आ नहीं सकी थी, गलती से छूट गई थी, उसको अभी तक रुका के रखे थे जलसे के लिए। तो उस बच्चे का पिछले साल हाजिरी की पाबंदी का इनाम हज़रत मौलाना सलीम साहब के हाथों दिया जा रहा है। अल्तमश सिराजुल्लाह खान नर्सरी 1 के तालिब इल्म थे, अब नर्सरी 2 में गए होंगे। अल्तमश सिराजुल्लाह कहाँ है, पेश कीजिए। और सादिया सलीम, तुम तीनों ने जो पढ़े थे ना, तुम्हारा वो इनाम पिछले साल उनको दो, अच्छे लेने का इनाम है और बाकी सब बच्चों के लिए भी इनाम है।